दुखनी हो शरुआत दुखना दाड़ा दूर थाय सुखनी दक्षिण गुजरात हो शरुआत दक्षिण ઝોનની જંબુસરથી જે પરિવર્તન યાત્રા નીકળેલી છે એમાં દયાદરા મુકામે આજના આ સમારંભના મુખ્ય અતિથિ એવા આપણા સુપ્રિયા મેડમ, સાઉથ ઝોનના પ્રભારી સંદીપજી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના વર્કિંગ પ્રેસિડેન્ટ અને પીરે તરીકે આદરણીય સન્માનીય કબીરભાઈ અને પૂર્વ મંત્રી તુષારભાઈ ચૌધરી સાહેબ, રાજ્યસભાના સાંસદ અમીબેન, આપણા ભરૂચ જિલ્લાના પ્રમુખ પરિમલસિંહજી, અમદાવાદથી આવેલા આપણા વડીલ આદરણીય સન્માનીય ઇકબાલભાઈ, એવા જ આપણા આદરણીય વડીલ પંકજભાઈ, આપણા પ્રદેશના મંત્રી માનસિંહભાઈ અને આપણા પ્રદેશના ઉપપ્રમુખ આપણા ભરૂચ જિલ્લાના સમાજના અગ્રણી આદરણીય સન્માનીય વડીલ અમારા યુનુસભાઈ પટેલ, એવા જ પ્રદેશના મંત્રી રાજેન્દ્રસિંહજી, આપણા વડીલ આગેવાન અરવિંદભાઈ અને આપણા ગામના વડીલ આગેવાન માજી જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય અને આપણા માર્ગદર્શક એવા બશીરભાઈ તથા મંચે છે તમામ મહાનુભાવો અને વાગરા વિધાનસભાના આજુબાજુના ગામના અમારા જવાબદાર વડીલો, આગેવાનો, નવયુવાન કાર્યકરો અને મારી મા બહેનો, આજના પરિવર્તન યાત્રાના સંદર્ભે હું તમામનું, તમે લગભગ 2 વાગ્યાથી તમામ મહેમાનોનું દયાદરા ગામના મારા તમામ વડીલો, નવયુવાનો, મારા મા બહેનો વતી ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ વતી હું દિલથી સ્વાગત કરું છું. અને લગભગ સમય ઘણો થઈ ગયેલો હોવાથી આપણે મુખ્ય મહેમાનોને સાંભળવાના છે. એટલે પ્રથમ તો તમામનું દિલથી ફરી તમે મહત્વનો સમય, કિંમતી સમય ફાળવીને કોંગ્રેસની ચિંતા કરવા માટે આજે આવેલા છે. ત્યારે આજે એક સંકલ્પ કરીએ કે 2022 કોંગ્રેસ લાવીશ અને 151 વાગરા વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પર જેને પણ ઉમેદવાર આપે આપણે જંગી બહુમતીથી જીતીને લાવીએ એવો આજે દૃઢ સંકલ્પ આ દયાદરા ગામના પાદરમાંથી કરીએ. એટલી વાત કરીને મારી વાતને ફરી વિરમું છું અને તમામનું દિલથી વેલકમ, સ્વાગત કરું છું. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર સુલેમાનભાઈ. હવે આપણે મહેમાનોનું સ્વાગત કરીશું. સુપ્રિયાબેનનું સ્વાગત બશીરભાઈ ફોજદાર કરશે બુકેથી. ઇબ્રાહીમભાઈ બાજીભાઈ પણ સુપ્રિયાબેનનું સ્વાગત કરશે. ઇબ્રાહીમભાઈ બાજીભાઈ. સંદીપજીનું સ્વાગત નરેન્દ્રભાઈ ગઢવી કરશે. વિરેનભાઈ ગઢવી કરશે. तुषारभाई चौधरी स्वागत रफीकभाई कोठी करशे। रफीकभाई कोठी
પીરે તરીકત કદીર પીરજાદા સાહેબનું સ્વાગત સુરેશભાઈ પરમાર કરશે. અમીબેન યાજ્ઞિકનું સ્વાગત અલ્લીભાઈ વ્યાદરા અલ્લીભાઈ કરશે. પંકજભાઈ પટેલનું સ્વાગત હબીબભાઈ પટેલ તાલુકા પંચાયત સદસ્ય કરશે. વસંતભાઈ નું સ્વાગત વિનયભાઈ પંચાલ વિનયભાઈ વસાવા. વિનયભાઈ વસાવા કરશે. કડોદ બોડિયાભાઈ નું સ્વાગત આરીફભાઈ સરનાર કરશે. બોડિયાભાઈ નું સ્વાગત આરીફભાઈ સરનાર કરશે. યુનુસભાઈ પટેલ નું સ્વાગત સલીમભાઈ સરપંચ ફાર્મ કરશે. અરવિંદભાઈ દોડાવાલાનું સ્વાગત મુકેશભાઈ કરશે. મુકેશભાઈ અટાલી. પરિમલસિંહ રાણાનું સ્વાગત ઇમરાનભાઈ મુનશી કરશે. વાલુ આસિફભાઈ વાલુ અને ઇમરાનભાઈ પરિમલસિંહ રાણાનું સ્વાગત કરશે. સંદીપભાઈ માંગરોલાનું સ્વાગત ઇલિયાસભાઈ શેરપુરા તાલુકા પંચાયત સદસ્ય. ગુરવનભાઈ પરમારનું સ્વાગત યુનુસભાઈ છીપા ડેપ્યુટી સરપંચ. રાજેન્દ્રભાઈ રાણાનું સ્વાગત અયુબભાઈ કેપ્ટન. હસમુખભાઈ પટેલનું સ્વાગત કરશે બાબુભાઈ વસાવા પરિયેજ. બાબરભાઈ વસાવા પરિયેજ. ઇકબાલભાઈ શેખનું સ્વાગત પરેશભાઈ વસાવા તવડા. પરેશભાઈ પરમાર કરશે. ફરીદાબેન નું સ્વાગત કરશે ફૈયાદભાઈ પાડરવાલા. તુષારભાઈ ચૌધરીનું સ્વાગત કરશે ગોપાલભાઈ કરમાલીવાલા. સુપ્રિયાબેન નું સ્વાગત કરશે નવીનભાઈ રાજગોર તવડા. નિકોરાના નવીનભાઈ રાજગોર. ઇકબાલભાઈ શેખ નું સ્વાગત કરશે સાજિદભાઈ કરમાળવાલા. તુષારભાઈ ચૌધરીનું સ્વાગત કરશે સલીમભાઈ દૂધવાલા. કદીરભાઈ પીરજાદા પીરે તરીકતનું સ્વાગત સબ્બીરભાઈ કાસડવાલા કરશે. સંદીપજીનું સ્વાગત જયદીપસિંહ કરશે. જયદીપસિંહ. સંદીપજીનું સ્વાગત દાઉદભાઈ કહાનવાલા તાલુકા સદસ્ય કરશે. તુષારભાઈ ચૌધરીનું સ્વાગત અનિલભાઈ નિજામા કરશે. સંદીપજીનું સ્વાગત અનિલભાઈ નિજામા કરશે.
સંદીપજીનું સ્વાગત ઇકબાલભાઈ નવિયા કરશે. કદીર પીરજાદાનું સ્વાગત અફજલભાઈ કરશે. સંદીપજીનું સ્વાગત દિનેશભાઈ કરશે. સાયકા થોડુંક જ છે, 10 જ માણસો છે. હવે પછી ભેદભાવ ઉભો થાય તમારે. પંકજભાઈનું સ્વાગત નરેશભાઈ ટ્રાકલ કરશે. પંકજભાઈનું સ્વાગત નરેશભાઈ ટ્રાકલ કરશે. જે લખાતી નંબર બોલી જવા દે નહીં યાર. તુષારભાઈ ચૌધરીનું સ્વાગત આગેવાન યાર. અરવિંદભાઈ અંગારેશ્વર તથા રાજુભાઈ અંગારેશ્વર પંકજભાઈનું સ્વાગત કરશે. હવે નામો કોઈ બાકી ના રહી જાય. પાછળ છે હજુ નામ. બધા એક એક લઈ લઈશું. અમારે છે ને પ્રિટેશભાઈ પ્રજાપતિ અને દિનેશભાઈ સંમેલન રાખ્યું હતું નહીં, તમારે બહુ માથાકૂટ. પંકજભાઈનું સ્વાગત કરશે. સબ્બીરભાઈ કરશે. આવી ગયો યાર. ગોવર્ધનભાઈ છીટા અને સબ્બીરભાઈ તુષારભાઈ ચૌધરીનું સ્વાગત કરશે. ખાન સર તમારે બહુ ઊભા થાય છે એટલે. બાદશાહભાઈ કહાન તુષારભાઈ ચૌધરીનું સ્વાગત કરશે. જગદીશ પરમાર નિકોરા મંગલેશ્વર જગદીશ આહિર દહેજ પીરે તરીકત પીરજાદા સાહેબનું સ્વાગત કરશે. રમેશભાઈ અંગારેશ્વર દોડિયા સાહેબનું સ્વાગત કરશે. રમેશભાઈ અંગારેશ્વર. એક વખત તો બોલ્યા. ત્યારે અરે નામ છે ને. જાકીરભાઈ દિવાન પીરે તરીકત પીરજાદા સાહેબનું સ્વાગત કરશે. ઇકબાલભાઈ ડેલાવાલા પીરે તરીકત પારખેત પીરે તરીકત પીરજાદા સાહેબનું સ્વાગત કરશે. અતુલભાઈ જનોરવાલા સુપ્રિયાબેનનું સ્વાગત કરશે. આસિફભાઈ સરપંચ પીરે તરીકત પીરજાદા સાહેબનું સ્વાગત કરશે. સમયનો અભાવ હોવાના કારણે અગર કોઈ આગેવાન રહી ગયું હોય તો ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ વતી હું માફી ચાહું છું. સમયનો અભાવ હોવાના કારણે હવે હું पीरे तरीकत पीरजादा साहब को एक शेर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए. ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं. ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं. फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं. और ऐसे दरवेशों से मिलता है सजरा इनका जिनके जूतों में कहीं ताज पड़े रहते हैं. पीरजादा साहब को मैं कहूंगा कि अपना व्यक्तित्व रजू करें. नमस्ते। आज यहाँ पे परिवर्तन यात्रा दयादरा में आज आप लोगों ने बहुत बड़ी खुशी के साथ हमारा इस्तकबाल किया। आज यहाँ पे हमारे लिए खास दिल्ली से आई हैं हमारी प्रवक्ता, और आप उनको देखते होंगे भाजपा के सामने खूब लड़ते हुए टीवी पे। सुप्रिया जी, हमारी एमपी है राज्यसभा की अमी बहन, हमारे यहाँ के इंचार्ज एआईसीसी के संदीप जी, हमारे प्रेसिडेंट परिमल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जो रह चुके हैं तुषार भाई चौधरी जी, राजेंद्र सिंह, और हमारे यूनुस पटेल साहब,
और संदीप जी और पीछे बैठे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी इकबाल भाई, दोस्तों और साथियों और मेरे बुजुर्गों, मैं ज्यादा आपका वक्त लेना नहीं चाहता क्योंकि असर की अजान हो चुकी है और 1 घंटे के अंदर अभी मगरिब की अजान होगी और हमारा जो ये जो परिवर्तन यात्रा है वो भरूच से लेके आगे चलने वाली है। 1.5 घंटा लेट हो चुके हैं। मैं कहना ही नहीं चाहता क्योंकि जो मेहमान आए उनको चुनाव के मौके पे आऊंगा। मेरी यही गुजारिश है कि इस मौके पर आप जानते हो कि क्या हालात है गुजरात के। हमारे 27 साल से हम लोग कैसे मसाइलों का सामना करते हैं। हमारे इदारे, हमारी कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे मदारिस, लॉ एंड ऑर्डर, कच्छ से लेके उमरगाम तक के हमारे भाइयों के प्रॉब्लम और हमारे जो दोस्त लोग हैं, क्योंकि हम तो गुजराती लोग हैं, महात्मा गांधी का देश है, सरदार पटेल का देश है और यहां कई कोशिश हुई लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये गुलिस्तां हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे पुरखों ने मिल के जाने दिए। महात्मा गांधी के देश को कौन से हालात पे ले जा रहे हैं, ये सब मेरे आने वाले जो लीडर्स है वो बात करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इत्तेफाक रखिए। कांग्रेस का जो विचार है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, उसका कमिटमेंट आपका मैं सालों से जानता हूं और आपका जो खैर मकदम का जो वेलकम का तरीका था, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो ही बताती है कि हम कांग्रेस के लिए रहे ना रहे, आप लोग कांग्रेस के लिए मर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। और इसी वजह से आप आने वाले दिनों में, वक्त बहुत कम होने वाला है दोस्तों, अभी से आने वाले आसपास के बूथों में, गांव में जाइए, मशवरे कीजिए। आज देखो सुलेमान भाई, ये जितने लोग यहां बैठे हैं, इन लोगों ने सबको साथ रखा है। कोई एक कौम की कोई पार्टी नहीं है, ये पार्टी है आइडियोलॉजी की, महात्मा गांधी की, सरदार पटेल, मौलाना आजाद की। ये पार्टी है देश को बनाने वाली, ये पार्टी है देश को चलाने वाली और वो सब बातें मेरे लीडर्स लोग करेंगे। मैं आपको यही चाहता हूं कि इत्तेफाक रखिए, एक रहिए और बिन सांप्रदायिकता जो गुजरात को तोड़ने की कोशिश हो रही है और गुजरात में गांव गांव जो जहर फैला है, उस जहर के अंदर हमको प्यार का, एकता का माहौल बनाना है और प्यार का, एकता माहौल बनाने के लिए गांव खंडे से यहां कोई एक अलग हो ही नहीं सकता। पानी में डांग मारने से पानी अलग हो नहीं सकता। इधर हिंदू है, इधर दरबार है, इधर दलित है, इधर मुस्लिम है, इधर सिख है, इधर ईसाई है। हमारे गांव के आसपास का ये माहौल है। अहमद भाई यहां से पार्लियामेंट लड़के पार्लियामेंट में जीत के जाते थे। एक जमाने में भरूच ने राजीव गांधी को बताया था, अहमद पटेल ने, कि राजीव जी आप भरूच लड़ने आइए, ये भरूच है। और राज्यसभा में गए, हमारे लिए जो काम किए वो तो हम लोग कभी नहीं भूल सकते। उनको खुश रखने के लिए, उनकी रूह को खुश रखने के लिए, हमारे सबकी एकता के लिए आप कांग्रेस का ताउन कीजिए, कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए और कांग्रेस के साथ मिलकर रहिए। छोटी मोटी गलतियां हुई, न तालुका पंचायत रही, न जिला पंचायत रही, न कॉरपोरेशन रही, न असेंबली रही और 10 साल हमने अहमद पटेल के साथ मिलकर सेंटर में राज किया, वो भी खत्म हो गया। अब शुरुआत फिर यहां से होने वाली है। अगर गलती की तो हमको पछताना पड़ेगा और हम ये देश छोड़ के लोग कुछ भी कहें, यहां से उधर जाओ, इधर जाओ, कहीं जाने वाले नहीं है। इस देश की मिट्टी हमारी है, इसी में पैदा हुए, इसी में मरने वाले हैं। तो आप इस देश की एकता बुनियाद बनाए रखने के लिए, हिंदुस्तान का आईन को सलामत रखने के लिए, बाबा साहब आंबेडकर के आईन को सलामत रखने के लिए और एक दूसरे को प्यार करने के लिए कांग्रेस का ताउन कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जो खैर मकदम, जो ताउन आपने हमारा किया है, अल्लाह आपको उसका अजर दे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जोरदार तालियां और बहुत बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। अब मैं एक शेर के साथ
हमारे मुख्य मेहमान को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं का परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, और दिया है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। मैं संदीप जी को कहना चाहूंगा कि वो आइए और इस स्टेज को कुछ सुनाइए। आप सब लोगों को नमस्ते। आदरणीय मंच उपस्थित सारी कांग्रेस पार्टी का नेतागण, भाई और बहनों, आज पूरा गुजरात में 5 जगह से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रहा है कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व से। आप सब लोगों को पता है साउथ गुजरात से जंबूसर से लेकर उमरगांव तक ये पदयात्रा निकल रहे। इस पदयात्रा का उद्घाटन आज हमारा कांग्रेस पार्टी का आवाज एआईसीसी का सोशल मीडिया का हेड सुप्रिया श्रीनाथे जी ने आज जंबूसर में किया है। आपको सबको पता है, अब 27 साल से गुजरात में भाजपा का सरकार है। 27 साल में गुजरात का क्या हालत हुआ है आपको पता है। मैं अभी बहुत जगह इधर 6 महीने 7 महीने से इधर हर एक जिला पंचायत लेवल में हर एक ब्लॉक में बार बार घूम रहा हूं, मगर गुजरात मॉडल के बारे में बहुत चर्चा हुआ था 2014 में। आपको ट्राइबल एरिया में गए तो आपको स्कूल है तो टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो बेड नहीं है, ऐसा हालत ट्राइबल एरिया में है। आपको शहरी इलाके में आया तो नवसारी जैसा शहर में 6 महीने आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, 6 महीने पानी से नवसारी डूब जाता है। ऐसा गुजरात मॉडल है। पूरा गुजरात का मॉडल का बारे में 2 दिन से पूरे देश में क्या चर्चा हो रहा है आप सब लोगों को पता है। आप कुछ महीने 2 महीने पहले 70 लोग मर गए ये लता कांड में, मगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस गुजरात का मुख्यमंत्री वो लता कांड का बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। क्यों नहीं बताया है? लता कांड में कैसे लोग कहीं से मर गया है, ये गुजरात गवर्नमेंट का फेलियर से। ये लता कांड नहीं है, गुजरात गवर्नमेंट का हत्याकांड है। आप 2 दिन पहले देखा मोरबी में कैसा हालत हुआ है। एक ब्रिज में हमारा भाई और बहनों 150 लोग के ऊपर आप मोरबी में हत्या हुआ है। ये रियली वो हत्या ही है। गुजरात सरकार का ये लापरवाही, गुजरात सरकार का ये करप्शन कमीशन का वजह से ऐसा ब्रिज गुजरात में बनाया है। मैं कर्नाटक से आता हूं। कर्नाटक से सरकार को 40% सरकार बोलकर बीजेपी का सरकार को हर लोग उधर पुकारता है। पूरा कर्नाटक का कॉन्ट्रैक्टर्स प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, मगर मैं इधर आने के बाद पता चला है ये 50% के ऊपर का सरकार है बोलकर। आप गुजरात में किधर भी डेवलपमेंट में नहीं देख सकता है। गुजरात में आपको एक बारिश में आपको घूमने के लिए रास्ता नहीं है। इसलिए आप सब लोग आने वाला चुनाव में पार्टी किसी को उम्मीदवारी खड़ा किया तो एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहिए। आपका आवाज बुलंद करने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए राहुल जी ने 3500 किलोमीटर का पदयात्रा 12 स्टेट में 2 यूनियन टेरिटरी से राहुल जी ने कर रहा है। आपको पता है राहुल जी का घर में 2 हत्या हुआ है। इंदिरा जी शहीद हुआ है, राजीव जी शहीद हुआ है, मगर राहुल जी कुछ लापरवाही नहीं, कुछ इसके बारे में नहीं सोच रहा है। राहुल जी आरएसएस को, भाजपा का क्या क्या उसका मुद्दा है, वो लोगों का क्या सोच है, खुला आम उसको क्रिटिसाइज कर कन्याकुमारी से शुरू किया है, ये पदयात्रा कश्मीर में खत्म हो जाता है। इसलिए आप सब लोगों को विनती करता हूं, हम लोग राहुल जी का हाथ में मजबूत करना चाहिए। राहुल जी को सोच को, विचारधारा को हम लोग पहचानना चाहिए। वो विचारधारा को गांव-गांव घर-घर में जाकर पहचानना है। राहुल जी पदयात्रा इस देश का अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कर रहे हैं। राहुल जी पदयात्रा ये महंगाई के बारे में कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस का सरकार था, उस समय पेट्रोल कितने रुपए थे? 75 रुपीज था। डीजल 55 रुपए था। सिलेंडर गैस 400 रुपए थे। उस समय में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़े थे, मगर कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का नेतृत्व में लोगों को सब्सिडी देते थे। इसलिए आपका सिलेंडर गैस 400 रुपए में मिलता था, इसलिए आपको पेट्रोल 75 रुपए में मिलते थे, इसलिए आपको डीजल 55 रुपए में मिलता था। यह सरकार कैसा चला रहा है आप सब लोगों को पता है।
इसलिए इस सरकार को 27 साल में इधर भाजपा का सरकार है, कांग्रेस का सरकार नहीं है। मगर आप सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का संदेश लेकर, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा लेकर हर गांव-गांव में, बूथ में लड़ाई लड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं ये इस तरफ से सब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आपको अभी दो पार्टी भी इधर कुछ दिन से शुरू हो गया, एक आम आदमी, एक MIM। आप लोग सब लोग इधर विचारधारा से जुड़ने वाला है। आपको केजरीवाल ने आपका दिल्ली सरकार में गांधी जी का फोटो निकला था, अभी नोट में गांधी जी का फोटो निकालने का बात कर रहे हैं। इसलिए आप लोग सोचना चाहिए उसका सोच क्या है, उसका आइडियोलॉजी क्या है, आप लोग गैर से सोचना चाहिए। आपको MIM के बारे में मैं ज्यादा बात करना नहीं चाह रहा हूं। किधर किधर कांग्रेस पार्टी को नुकसान करने को चाहिए, वो लोग बी टीम बनाकर इधर काम करने का शुरू किया है। इसलिए आप सब लोगों को मैं विनती करता हूं, इस देश को संविधान बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम लोग मिलकर एक साथ इस बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आना है। 27 साल में गुजरात में क्या क्या ये लोग गुजरात को वो पूरे तरीके से कर सकते हो किया है। कांग्रेस पार्टी इस परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रहा है, परिवर्तन, लोग इधर परिवर्तन चाह रहा है। आपको पता है 8 दिन का गुजरात गौरव यात्रा निकला था भाजपा का नेतृत्व में। ये गुजरात गौरव यात्रा 5 दिन में वो लोग खत्म करना पड़ा है। कुछ जिले में वो लोगों को एंट्री करना नहीं छोड़ा। आपको ट्राइबल एरिया में, हमारा आदिवासी इलाके में तुषार जी इधर है, पूछिए, महाराष्ट्र से लोग लेकर आकर इधर कार्यक्रम करने के लिए, अमित शाह जी का कार्यक्रम में महाराष्ट्र में नंदुरबार से लोग लेकर आकर कार्यक्रम किया है। हमारा दारा साहब अनंत पटेल के ऊपर भाजपा का लीडर हमला किया है, मगर दोबारा उसका ऊपर ही 307 केस डाला है। कांग्रेस पार्टी इसका ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता को, कांग्रेस पार्टी का नेता को किधर किधर नुकसान होता है। राहुल जी आपको सब लोगों को एक संदेश दिया है, डरो मत। हम लोग डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला भी नहीं है। हम लोग नहीं डरते, मगर प्यार से हम लोग कैसे लोगों को जीतना, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमको सिखाया है। आप सब लोगों को मैं विनती करता हूं, आने वाला 30 दिन में आप सब लोग घर घर जाना चाहिए। मनोज जी दूसरा स्टेट से आकर इधर 3 महीने से काम कर रहे हैं। आपका हम लोग घर घर जाने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में 8 वचन आप लोगों को दिया है। 8 वचन आप आम आदमी का जीवन में परिवर्तन लेने का 8 वचन है। ये 8 वचन लेकर ऑलरेडी वागरा में बहुत बढ़िया संख्या में आप लोग इधर घर घर गया है। आप लोग रोज हम लोग काम करते हैं बोलकर आज हम लोग एक बार संकल्प लेना चाहिए। मेरे को पूर्ण विश्वास है वागरा में कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव जीतता है। वागरा से जीतते जीतते साउथ गुजरात में हम लोग लास्ट इलेक्शन में सिर्फ 8 सीट जीते थे। इस बार 6 MLA हमारा साथ है, इसलिए सरकार नहीं बनाया। मैं उमरगांव से हर असेंबली में 3-3, 5-5, 6-6 बार गया हूं, मगर पूर्ण विश्वास है इस बार लोग क्या परिवर्तन चाह रहे हैं। साउथ गुजरात से इस बार सरकार गांधीनगर में बनाता है बोलकर मेरे को पूर्ण विश्वास है। इसलिए आने वाला समय में सारी हमारा लीडर्स इधर आ रहा है। हमारा अमी याग्निक जी राज्यसभा सदस्य भी इधर है, कबीर पीरजादा जी कांग्रेस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट इधर है, आप सब लोगों को पहचान है, यूनुस पटेल जी है, सब लोग इधर है। आप सब लोग इधर बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को विनती करता हूं, आप आज से 30 दिन कोई लोग रेस्ट नहीं लेना है। 6 घंटे हर दिन हम लोग काम करना है, कांग्रेस पार्टी को जितवाना है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आना है। इसलिए आप सब लोग इधर आया है, हमको बात करने का मौका दिया। सब लोगों को नमस्ते, जय हिंद, जय कांग्रेस। ऐ ताजमहल तो कितना खूबसूरत है, ऐ ताजमहल तो कितना खूबसूरत है, तुझमें तो संगे मरमर की मूरत है, और तुझसे अच्छी तो हमारी सुप्रिया मैडम की सूरत है। मैं ऐसी प्रवक्ता को आपके सामने लाना चाहता हूं कि आप लोग टीवी पे हमेशा देखते हैं, आज हम खुश नसीब है कि हम उनको लाइव देखेंगे, तो आप शांति से सुने उनको। आप सबको मेरा इस्तकबाल, यहाँ पर बैठी हुई मेरी बहनों को, चाचियों को, भाभियों को, पितातुल बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और सम्मानित मंच को। राहत इंदौरी का एक शेर है और वो जरूर पढ़ना चाहती हूं बोलने से पहले। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। हम यहां पैदा हुए,
यहां हमारी परवरिश हुई, शादी हुई, ब्याह हुआ, बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हो गए, हमारी मिट्टी, हमारा खून यहां पर है। किसी की औकात है जो हमें बोल सके कहीं और चले जाओ? यह है भाजपा की असलियत। और भाजपा की जो बी टीम आपके बीच में घूम रही है, वो हर उस जगह जाती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी खतरे में आने वाली होती है। मैं बात कर रही हूं आम आदमी पार्टी की और मैं बात कर रही हूं AIM की। आम आदमी पार्टी दिल्ली में रहती हूं तो उनकी थोड़ी सी असलियत आपको पहले बता देती हूं और उसके बाद कांग्रेस के वादों की और अपनी बात करूंगी। दिल्ली में दंगे हुए, अरविंद केजरीवाल चुप। दिल्ली में जंतर मंतर पर सिर काटो के नारे लगे, अरविंद केजरीवाल चुप। दिल्ली में बुलडोजर चलेगा, अरविंद केजरीवाल चुप। अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते गुजरात आएंगे, लेकिन गुजरात की बेटी के 11 बलात्कारियों की रिहाई पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। ये गुजरात कैसे बर्दाश्त करेगा? इस बात का जवाब मुझे आप दीजिए। और मुझे फक्र है इस बात का, और मेरा सर सच में गर्व से उठता है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी में वो यकीन था, वो हौसला था और वो शिद्दत थी कि उन्होंने बोला कि 11 बलात्कारियों की रिहाई गलत है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं और घंटों के अंदर बिल्किस बानो के घर के कातिल, इसके बलात्कारी रिहा हो जाते हैं। और हम चुप बैठेंगे? हम चुप नहीं बैठेंगे। हम चुप इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि नारी सम्मान धर्म से, जात से, प्रांत से, उम्र से, हर चीज में ऊपर है। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर मां के पैरों में जन्नत और यत्र नार्यस्तु तत्र पूज्यते देवता का मंत्र जपा जाता है। और मुझे फक्र है कि राहुल गांधी ने परवाह नहीं की कि कोई क्या कहेगा और उन्होंने बोला कि यह गलत है। और अब पता चलता है ये काम अकेले आपकी गुजरात सरकार और इनके MLAs ने नहीं किया था। ये काम मिलकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री की स्वीकृति से हुआ था। ये बात करेंगे महिला सम्मान की और जवाब आपको लेना है। आप भटकिए मत, और भटकिए इसलिए नहीं क्योंकि बहरूपिये बहुत है शहर में। अरविंद केजरीवाल गोवा भी चुनाव लड़ने गए थे और उत्तराखंड भी चुनाव लड़ने गए थे, एक सीट नहीं आई। लेकिन आपको पता है उन्होंने क्या किया? हमारे और भाजपा के वोटों में अंत में जितना अंतर था उतना वोट अरविंद केजरीवाल ने काटा, हमारा नुकसान किया और भाजपा की जीत सुनिश्चित करी। यह उनका असली चेहरा है और इसको आपको पहचानना होगा। और यही हाल ओवैसी का है। वो यूपी आए थे, वो बिहार गए थे, वो क्यों गए थे ये सब जानते हैं, जिससे कि भाजपा को फायदा हो और गैर भाजपा के वोट को वो काट सके, नुकसान हो। तो बागडोर इस देश की, इस प्रदेश की और कहीं ना कहीं इस देश को राह दिखाने की इस समय आपके हाथ में है। बहुत सुनते थे हम गुजरात मॉडल को। मैं गुजरात मॉडल को गलत नहीं कहूंगी और इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि गुजरात आपकी सरजमी है और गुजरात ने गांधी और पटेल दिया। लेकिन हां, मोदी शाह का मॉडल करप्शन और कमीशन का मॉडल है और उसका सबसे बड़ा प्रूफ आज 150 से ज्यादा लोगों की मोरबी में जो निर्मम मौत हुई वो है। 5 दिन पहले पुल खुलता है, 12,000 लोग टिकट लेकर वहां जाते हैं। प्रशासन कहता है हमें पता ही नहीं है कब पुल खुल गया। टिकट बिक्री का पैसा आपकी जेब में आएगा और आपको पता नहीं है। और जो टिकट बेचते हैं खिड़की पर बैठकर वो लोग, कंपनी का MD गिरफ्तार नहीं होता है, म्युनिसिपैलिटी का कमिश्नर गिरफ्तार नहीं होता, अर्बन डेवलपमेंट का मंत्री जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसको मोदी जी गाड़ी में बैठने की जगह नहीं देते, उसकी जवाबदेही नहीं होती। जवाबदेही 3 सुरक्षा कर्मियों की और 2 टिकट बेचने वालों की होती है। यह है मॉडल। और आप चाहते हैं कि इस मॉडल को आप देश भर में लागू करिए।
आज देश समझ गया आपका मॉडल क्या है। आपका मॉडल है लोगों को डराकर धमकाकर जबरन संविधान के तार तार करके लोगों के हक का हनन करना। लेकिन आप भूल गए कि ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये सरदार पटेल का देश है, ये मौलाना आजाद का देश है, ये राजेंद्र प्रसाद का देश है, ये बाबू जगजीवन राम का देश है, ये अंबेडकर का देश है। ये एक सुर में खड़ा हो जाएगा और आपको खदेड़ देगा जब जब आप इसके हक का हनन करेंगे। करने की आपने बहुत कोशिश करी, अंततः घटवा घुटने तो आपको इस देश के किसानों ने टिकवा दिए और आपको माफी मांगनी पड़ी वो काले कानून वापस लेकर। तो इस मंच से पहले तो मैं ये कहूंगी कि अपनी ताकत को जरूर पहचानिए। आपका जो वोट है, और सबके पास इस देश में एक वोट है, सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी के पास वोट एक ही है, वोट किसी के पास दूसरा नहीं है। अपने वोट की ताकत को पहचानिए और जवाबदेही तय करिए। वो मुद्दे ऐसे उठाते हैं कि हम उलझ जाएं, ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाते हैं, लेकिन मुद्दे इस देश के सामने सिर्फ और सिर्फ वो है जिसको लेकर राहुल गांधी इस चिलमिलाती गर्मी में 3570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चल रहे हैं और फक्र होता है कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं। और वो खड़े होकर पूछते हैं कि युवाओं के भविष्य का क्या होगा। इतने सारे युवा बैठे हैं, क्या है इनके भविष्य का प्लान? क्यों नहीं है इनके लिए नौकरियां? क्यों पर्चे लीक हो जाते हैं? क्यों महंगाई इतनी ज्यादा? और महंगाई का बोझ मेरी बहनों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। 400 का सिलेंडर 2014 में बिकता था, आज 1200 का है। सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? कड़वा तेल 70 का था, 220 का है। आटा 22 का था, 40 का है। दूध 35 का था, आज 60 का है। पेट्रोल 70 का था, आज 100 के पार है। और लगता है रुपए को भी शतक लगाकर ही मनवाएंगे मोदी जी। और इसको कौन झेल रहा है? उसको देश के युवा, उसको देश के वृद्ध, देश की महिलाएं, देश के लोग झेल रहे हैं। और बेशर्मी की यह हद है कि आपने आटे, चावल, दाल, चाय की पत्ती और कॉफी तक पर जीएसटी लगा दिया है। शायद एक दिन ऐसा आ जाए, अगर मोदी जी सत्ता में रह गए, कि आपके सांस लेने पर भी जीएसटी लगा देंगे। आगाह हो जाइए और निकाल फेंकिए ऐसी सरकार को। और जब राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने की या चुनाव जीतने की या वादों की बात करते हैं तो वो संकल्प लेते हैं। और राहुल जी के 8 वादे मैं आपके सामने बोल रही हूं। इसमें से एक भी वादा ऐसा हो जो हमने नहीं किया हो, जरूर मुझे टोकिएगा। राहुल जी कहते हैं हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। इससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? वो कहते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, हम जबानी जमा खर्च नहीं करते हैं। वो कहते हैं संविदा पे जो कर्मचारी है उनको परमानेंट करेंगे। राजस्थान में छोटी दिवाली के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनाउंस किया और इसको क्रियान्वित किया, हमने करके दिखाया। जब वो कहते हैं कि दूध पर वो 5 रुपए की सब्सिडी देंगे और 6000 सरकारी स्कूल जो इस सरकार ने, गुजरात की भाजपा सरकार ने बंद कर दिए, हम 3000 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोलेंगे जिससे आपके बच्चे अच्छी शिक्षा सस्ते पा सके, तो वो आपके भविष्य की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बातें यहां पर बहुत लोग करेंगे, बड़े बड़े वादे भी बहुत लोग करेंगे, लेकिन वादा भी वो मानिएगा जो किसी ने कर दिखाया और बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च हैं। भारत जोड़ो यात्रा, और इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगी क्योंकि हमारी ये जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है ये कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित है और उसी के बारे में बात करती है। क्या है परिवर्तन? 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है गुजरात में। दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आपका जीवन 27 साल में बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है? और अगर बदतर हुआ है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी भी आपके ही हाथों में है। आपकी ही संकल्प, आपकी ही वोट की शक्ति है जो उनको उखाड़ फेंकेगी। जब राहुल गांधी जी चलते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कैमरे पर कितने लोग मुझे देख रहे हैं और किस एंगल से कैमरा मेरे ऊपर है, दूसरों का हाथ घसीट कर पीछे कर दो। जब एक औरत
80 साल की एक औरत उनको पकड़ के रोती है, तो वो इसलिए नहीं रो रही क्योंकि वो राहुल गांधी को पकड़ के रो रही है। वो इसलिए रोती है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी आखिरी उम्मीद, ये मेरी आखिरी आस, ये मेरी आखिरी आशा है, और अगर इस बंदे के साथ मैं खड़ी नहीं हुई तो ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा। जब युवा उनके पास आता है और उनका हाथ पकड़ के 4 कदम चलता है, तो उसको भी लगता है मिले कदम जुड़े वतन, और इसलिए वो चलता है। जब यंग लड़कियां, छोटी बच्चियां उनके पास आती है और अपने मन की बात कहती है, तो उनको लगता है कोई तो ऐसा आदमी है भारत की राजनीति में जिसके सामने मैं सुरक्षित महसूस करती हूं, जिसका हाथ थामकर मैं 10 कदम चल सकती हूं और इस उम्मीद से चल सकती हूं कि ये मेरे लिए सुरक्षित देश, ये मेरे लिए सुरक्षित भविष्य, ये मेरे लिए बेहतर हिंदुस्तान बनाएगा। और यही भारत जोड़ो यात्रा है, और ऐसा ही गुजरात भी बनना चाहिए। गुजरात मॉडल, मैं जिसको मोदी और शाह मॉडल मानती हूं, उसका मतलब है अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे। आज हमारा देश भूखमरी में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पीछे है। कमर तोड़ काम करते हैं किसान, इतनी फसल उगा देते हैं और भूखमरी में हम उनसे पीछे हैं। जब राहुल जी कहते हैं कि 3 लाख से ज्यादा जो कोविड की मौतें हुई, जो छुपाई गई गुजरात में, उनको 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर नेशनल डिजास्टर एक्ट लगा है तो लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, और ये वादा है उनका। मेरा अपना मानना है, हर बार, हर साल 5 साल में चुनाव आता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा उत्सव है, ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। लेकिन याद रखिएगा कि कई बार किसी देश की, किसी समाज की, किसी संस्कृति की, जिसको लाइफ में टर्निंग मोमेंट कहते हैं, निर्णायक अगर भूमिका होगी तो वो 2022 का गुजरात चुनाव होगी। भाजपा के अंत का आगाज गुजरात करेगा, ये पूरा विश्वास है मुझे। हाथ उठाकर बताइए अगर आपको भी ये विश्वास है। भाजपा के अंत का आगाज गुजरात से होगा, और होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम दो और हमारे दो की भ्रष्ट और कमीशन खोरी की सरकार चल नहीं सकती। जो सरकार गरीब के बारे में, जो सरकार महिलाओं के बारे में, जो युवाओं के बारे में, जो अकलियत के लोगों के बारे में ना सोचे, वो नहीं चल सकती है, उसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। जो सरकार सिर्फ और सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए चलती है, उसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं युवाओं से विशेषकर एक बात कहती हूं, खूब फोन देखो, खूब यूट्यूब देखो, खूब गेम खेलो, सब कुछ करो, लेकिन ये याद रखना कि क्रांति की शुरुआत हर युवा से होगी इस देश में। युवा जब डिसाइड कर लेगा कि क्रांति होनी है तो क्रांति होकर रहेगी, क्योंकि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। अपनी ताकत को पहचानिए, आसपास देखिए क्या हो रहा है, और अगर आपको भी इस आसपास की गतिविधियों से उलझन है तो खड़े हो जाइए और बदलाव करिए, परिवर्तन करिए। गुजरात 27 साल बाद चीख चीख के परिवर्तन मांग रहा है। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, गेंद अब आपके पाले में है और आपको यह परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, पर सबसे ज्यादा अपनी आने वाली नस्लों, अपने बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुखातिब हुई, आपसे बात करी। आशा करती हूं कि आप लोग परिवर्तन जरूर लाएंगे। एक बार जोर से हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जय हिंद। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, हिसाब तो दे। ये भाजपा हम कितनी बार लूटते हैं, हिसाब तो दे। હવે આપણા અફજલભાઈ ઘોડીવાલા મહેમાનોની આભાર વિધિ કરશે। અફજલભાઈ ઘોડીવાલાને કહીશ। આજ રોજ સવારથી આપણા ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસરથી જે સંકલ્પ પરિવર્તન યાત્રા નીકળેલી છે, તો એ યાત્રા
બધા સ્ટોપ આપતે આપતે આપણા દયાદરા મુકામે જ્યારે આજે આવેલી છે ત્યારે આપણી જે કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે આગલી હરોળના નેતાઓ છે જે મંચસ પર ઉપસ્થિત છે એ તમામ નેતાઓએ આપણને જે કંઈ સંકલ્પ પરિવર્તન કઈ રીતે થઈ શકે એની માહિતી આપી તે એમનું ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું તથા મારી સામે બેઠેલા તમામ કોંગ્રેસના જે આગેવાનો છે અને કાર્યકર્તાઓ છે કે જેમને થકી આજે કોંગ્રેસ પાર્ટી 27 વર્ષથી સત્તામાં હોવા છતાં પણ આજે મજબૂતાઈથી ઊભી રહેલી છે એવા કાર્યકર્તાઓનો પણ હું ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ વતી તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું नवसर्जन नवसर्जन नवसर्जन